157 years of history, rich in bloodshed, valor, sacrifice, and the highest traditions of the Indian Army. 4th of December 1758, 2 battalions were raised by Sir Robert Clive in Madras, and that is the date from which the history of the Madras Regiment begins. Sir. I'm going to shout out something and I want to see the response, if they can do it, if they know and if they've been taught this. Tambi kaisa? Tambi kaisa? Tambi kaisa? Tambi kaisa? Tiger jaisa. Sports are an integral part of the Indian Army, and every officer or Jawan plays at least one or more sport. And these sports are typically team sports, sports like basketball, volleyball, football, hockey, which are contact games which require you to lead, which require you to follow, and which require you to maybe sweat and bleed and be together as a team. That is the intent of sports in the Army. These young recruits have been playing this volleyball game for the past 1 hour, and the energy is mind-boggling. They're at it, and no flagging down. I'm going to be playing with them after many, many years. There is an age gap of about 2.5 decades between me and these guys, but let's see if I can keep up. I probably won't, but it's worth a shot. We won by a whisker. My body's aching, my shoulder is gone. But we won because of these young boys, so much of energy. They've been at it, and they carried me along. I want to introduce you to another officer who's in charge of all this. Games are a structured activity in the Army. They don't play for fun. Everything in the Army has a meaning. The kind of shoes they wear, the kind of socks they wear, the kind of dress they wear. And right from the punishments to the game, everything is constructive. Everything goes in a certain way. And I'm going to introduce you to an officer who will tell you what all this is about. And he's going to bring out the essence of sport in the Army. That is very important. Viewers, you should know why all this happens in the Army. It's not just physical fitness. There is much, much more to it. Viewers, I'm here at the volleyball courts of the Madras Regimental Centre, and with me I have the Adam Battalion Commander, Colonel K. Goraknathan. I'd like to speak to him and know what is the importance of sports in the Army. Is it just play, or does it mean much more? Colonel Goraknathan, welcome to Patriot. Thank you, sir. I would like to ask you, Colonel, what is the importance of sport in the Indian Army? Now, these young recruits have been sweating it out for the past 1 hour. Sure. And is it just sport, or is it something more than sport? Sir, I'll tell you, like PT and sports, they are important part of soldier's life. Yes. While PT is more structured and organized, games is much more fun and relaxing. Absolutely. And it gives the soldier 3 things. Firstly, it acts as a stress buster. For that 1 hour when he's sweating it out in the field, he is free from all the worries which is happening back at home or all the tensions. Yes. He's just playing with his brothers. Yes. Secondly, it imbibes the team spirit, like the will to win in any situation, like Yes. be it game or be it war. That spirit gets imbibed. That aggression, that aggression. competitiveness. Yeah, exactly. And third is the competitive spirit. Yes. Again, I have to win this. I have to win. In any situation. Yes. Be it losing or the cheering, the josh that comes. Yes. So But that's how it Colonel, is. one thing which I've noted in the Army from my Sir. past experiences also, that everything in the Army has a meaning. There is no meaningless activity in the Exactly, Army. exactly. Everything has a name, and everything is well thought through. Sir. Now, this also, I think, correct me if I'm wrong, but this also inculcates the spirit that
while you have to win, Sir. you have to take everybody along. There are no individual winners in the army. Yes, that's why Is that we, correct? Yes, sir. Yes, sir. I agree with you. Yes. That's why we encourage team sports. Yes. It's not the individual games. Yes. So the team spirit, so that they all are together in any Absolutely. situation. Absolutely. Be it war or be it sports. Yes. They everybody contributes to the success of the mission. Absolutely. So there is no individual winner. No If the individual winner. team wins, then everybody wins. If the team loses, then everybody Everybody loses. loses. Exactly. So the feeling of brotherhood and Yes. togetherness Yes. is inculcated. So what kind of sports do they play here apart from volleyball? I've been playing with these. Sir, they play volleyball, basketball, football, Okay. hockey, Okay. kabaddi, and all these. Typical Fauji sports. Typical Fauji sports. Which Boxing, yes, are yes, boxing. yes. All the best, and thank you very much, Colonel, for speaking with us, and thank you for being on Patriot. Thank you, sir. I think you're doing a fantastic job, and we hope that one of these young recruits, whom I've played with today, I hope in the future you discover somebody who goes on to play for India. Viewers, I'm at the Walker Gym at the Madras Regimental Centre. Captain S.S. Walker, Mahavir Chakra, was an officer of the Madras Regiment who was in charge of a motor position in the 1971 war. In spite of coming under heavy Pakistani artillery fire, he continued firing his mortars upon the enemy, even after he was grievously injured. For his act of bravery, he was given posthumously the Mahavir Chakra. The grateful nation remembers him today, and in the Madras Regiment, they've named this gym after him. This is a gym which is used frequently by the recruits and other people who come here, soldiers and officers who come here to work out, or maybe relax. This is the soldierly way of relaxing. And then they, sort of try and build muscle, get fit. But that's not why I'm here today. I'm here to introduce you to a few very special guests. People who have spent their entire life building muscles. Sab. Viewers, this is Subedar Rojas. He was Mr. India 2008 and 2010. साहब पेट्रियट में आपका स्वागत है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। साहब एक बात बताइए, आप मिस्टर इंडिया थे 2008-2010 में? जी सर। तो ये जो शौक है बॉडी बिल्डिंग का ना सर, ये आपका कब से शुरू हुआ? आप कहाँ के रहने वाले हैं? शुरू से बताइए, कब से शुरू हुआ? सर मैं केरला का रहने वाला हूँ। ओके। और सर मैंने फ़ौज में भर्ती होने के बाद फिर 10 साल मैं 19 मद्रास का हूँ। ओके। हाँ सर, 19 मद्रास में पोस्टिंग चला गया सारे ट्रेनिंग ख़त्म करके। फिर यूनिट में भी जब भी मुझे टाइम मिलता है तब मैं अपना वर्कआउट के ऊपर ध्यान देता था। अच्छा। कहीं भी वो जिम ढूंढता है, और अगर कहीं जिम नहीं मिला तो मैंने ग्राउंड एक्सरसाइज वगैरह करके यूनिट में थोड़ा सा बिजी रहता है, फिर भी मैंने अपना टाइम निकाल के वर्कआउट करता था। तो मैंने 10 साल पूरा निकाल दिया यूनिट में। अच्छा। हाँ सर, पूरा निकालने के बाद सर मेरा एक CO साहब था, तब कर्नल गिरीश गोगिया साहब था, अभी ब्रिगेडियर बन के रिटायर्ड हो गया। उस साहब ने मेरा इंटरेस्ट देख के उन्होंने मुझे एक सेंटर में भेज दिया। अच्छा। हाँ सर, सेंटर में भेजा। फिर मैंने यहाँ पे आके एक टीम को खड़ा कर दिया था। टीम खड़ा होने के बाद फिर 1 साल के बाद मैं नेशनल में मेडल ले लिया सर। नेशनल में मेडल ले लिया? हाँ सर। अच्छा। 1 साल के बाद? हाँ सर, 1 साल मैंने पूरा मेहनत किया, क्योंकि मैंने यूनिट से आया था, मुझे पता था क्या होता है और कैसे, तो मैंने पूरा इंटरेस्ट लिया। 10 साल कटे थे यूनिट में? 10 साल तो बहुत होता है। हाँ सर, तो मैंने पूरा दिन रात मेहनत किया, और 1 ही साल में मैंने आर्मी टीम में एंट्री ले लिया और सर्विसेज में मेडल ले लिया, नेशनल में भी मेडल ले लिया। अच्छा। हाँ सर, और 3 साल के बाद फिर मैंने नेशनल में गोल्ड मेडल लेके मिस्टर इंडिया बना। अच्छा। हाँ सर, वेरी गुड। ये मिस्टर इंडिया की कंपटीशन हुई कहाँ पे थी? ये सब मेरठ में हुआ था पहले, 2008 का मेरठ में हुआ था। अच्छा। और 2008 में गोवा में हुआ था सर। 2010? जी सर, गोवा में हुआ था। गोवा में हुआ था। अच्छा साहब, एक बात बताइए, सर। ये आप शुरू में बचपन से सर आप केरला के हो? जी सर। केरला में कौन सी जगह के हो आप? तलश्शेरी। तलश्शेरी के हो? जी सर। तो तलश्शेरी में जैसे आप कहीं पे रहते होगे, टाउन में या विलेज में, कहीं पे भी, सर, तो वहाँ पे क्या ऐसा कुछ कल्चर था बॉडी बिल्डिंग का, या लड़के ऐसा करते थे? आपको शौक कहाँ से चढ़ा? सब एक्चुअली मेरा अंकल एक्स आर्मी है, एक सूबेदार था, एक सूबेदार सुरेंद्रन। अच्छा। तो उनको बहुत शौक था सर बॉडी बिल्डिंग के। अच्छा। और उनको ये पूरा कर नहीं पाया, तो उन्होंने मुझे चुन लिया। अच्छा। हाँ सर, तो मैंने वो उनका जो पूरा सपना था वो मैंने पूरा
कर नहीं पाया, फिर भी जितना हो सकता है उतना मैंने तो कर लिया। सूबेदार सुरेंद्रन साहब की बॉडी तो अच्छी होगी? सर वो सर्विसेज तक खेल चुका हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ सर, और उसके बाद में अभी वो पेंशन होने के बाद 60 ईयर्स ओल्ड है उनका भी, वो अभी भी मास्टर्स में नेशनल चैम्पियन है। अच्छा। हाँ सर, उनका इंस्पिरेशन है मुझे भी, मैं भी उनको ही देख के, मेरा फर्स्ट गुरु वही है। Havaldar Peter Thangaraj is the stuff of legend. Long back, he was the goalkeeper for the Durand Cup, which the Madras Regiment won not once but twice. At one point in time, they said he was Asia's best football goalkeeper. This stadium where I'm standing at is named after Havaldar Peter Thangaraj. And today I have with me athletes, track and field athletes of the Madras Regimental Centre. Amongst them, heroes. Now, Patriot, the TV series that you're watching right now, attempts to bring you new heroes, heroes that you've never heard of, every week. And today I have a different kind. I have sporting heroes. And let's start with the coach. साहब, पेट्रियट में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। साहब, आप अपना नाम बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। पूरा इंडिया आपको देख रहा है सर। आप क्या करते हैं, अपने बारे में ज़रा बताइए। सर, मेरा नाम सूबेदार राम कुमार, एथलेटिक कोच, मद्रास रेजिमेंट सेंटर, वेलिंगटन। जी, अच्छा। एथलेटिक्स में क्या क्या? ट्रैक एंड फील्ड सर। अच्छा, आपको कितना टाइम हो गया सर यहाँ पे? यहाँ पर मेरा 10 साल की कोचिंग कर रहा था। और उसके पहले आप क्या करते हैं? आप भी गेम कर रहा था सर। अच्छा, कौन सा गेम था आपके? एथलेटिक्स सर, हाई जंप सर। हाई जंप से कितना, किस लेवल पे आपने पार्ट लिया? नेशनल लेवल पार्ट लिया सर। आप नेशनल लेवल एथलीट हैं? हाँ सर। चलिए सर, और ये जो एथलीट्स हैं, इनका सुबह से लेकर रात तक क्या करते हैं? इनका और भी कोई ड्यूटी होती है कि सिर्फ एथलेटिक्स है इनका? ओनली एथलेटिक्स सर, ओके, ओनली स्पोर्ट्स। मॉर्निंग इनका सिर्फ एथलेटिक्स का है? एथलेटिक्स सर। अच्छा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है? नहीं सर। इनका और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? नहीं सर। तो सवेरे आप उठा के क्या करते हैं इसको सब? जैसे सवेरे कितने बजे उठते हैं लोग? सर ऑलमोस्ट 5 to 5:30। हाँ। 6:30 इधर असेंबली होता है। अच्छा। उसके बाद इधर सुबह मॉर्निंग का जो वर्कआउट स्टार्ट होता है। अच्छा। 6:30 टू मैक्सिमम 8:30 9 o'clock तक। ओके। उसके बाद आफ्टर डाइट ब्रेकफास्ट रेस्ट करेगा, फिर इवनिंग दोबारा सेम। कोई स्पेशल डाइट होती है इनकी? स्पेशल डे होता है सर, है ना? हाँ सर। ये इतने पतले दुबले हैं सबके सब? ये लॉन्ग डिस्टेंस रनर है? लॉन्ग डिस्टेंस का भी, जंपर भी, स्पिनर भी, हाँ। मिक्सर है सर। अच्छा, तो फिर उसके बाद सवेरे ट्रेनिंग कर दी, फिर उन्होंने ब्रेकफास्ट करा? हाँ सर। ब्रेकफास्ट के बाद और 1.5 to 2 hours रेस्ट करेगा सर। हाँ। फिर आफ्टरनून दोबारा उठ के खाना लाइट खाना करके इवनिंग 3:30 4 o'clock दोबारा स्टेडियम अच्छा वर्कआउट स्टार्ट है। तो बॉडी को साहब फिर रेस्ट भी चाहिए, बॉडी को डाइट भी चाहिए, पक्का सर। बॉडी को एक्सरसाइज भी चाहिए। पक्का सही सर। तो करेक्ट डाइट, करेक्ट डाइट, करेक्ट एक्सरसाइज, यस सर, करेक्ट रेस्ट, यस इससे एथलीट बनेगा सर, है ना? हाँ सर। और आपके बेस्ट एथलीट कौन है साहब अभी, जिनको आप मानते हैं कि हाँ ये एथलीट तगड़ा है बिल्कुल एकदम? नेक्स्ट बार आरिक राजीव, हाँ, हवलदार इरफान केटी, हाँ, हवलदार गणपति, हाँ, हवलदार नेक्स्ट बार लक्ष्मण, हाँ, और हवलदार अरविचल। प्रेजेंट परफॉर्मेंस स्टाफ चल रहा है सर। ये सब इंटरनेशनल लेवल के हैं? इंटरनेशनल लेवल का सर। इसमें ओलंपियन भी होंगे? ओलंपियन भी है सर। अर्जुन अवार्ड? अर्जुन अवार्ड भी है सर। इसमें नेक्स्ट बार आरिक राजीव 2017 में अर्जुन अवार्ड लिया सर। अच्छा। और लास्ट ईयर ओलंपिक भी पार्टिसिपेट किया। अच्छा। और हवलदार गणपति भी लास्ट ईयर 2016 में ओलंपिक पार्टिसिपेट किया। अच्छा। उसका पहले 2012 में हवलदार इरफान केटी ओलंपिक पार्टिसिपेट किया। तो आपका काफ़ी लंबा हिस्ट्री है मद्रास रेजिमेंट का, स्पोर्ट्स का, हाँ सर, है ना? और काफ़ी इंटरेस्ट के साथ ये सब खेलते हैं, हर सवेरे आ जाते हैं, हाँ सर, है ना? सेल्फ मोटिवेटेड है? सेल्फ मोटिवेटेड सर। सेंटर भी बहुत मोटिवेटेड है स्पोर्ट्स के बारे में। अच्छा। इसलिए हमारा पिछले 5 साल के अंदर 3 ओलंपियन बन गया, काफ़ी इंटरनेशनल एथलीट बन गया। अच्छा। शॉर्ट टाइम पर। तो मद्रास रेजिमेंट और मद्रास रेजिमेंटल सेंटर से पूरा सपोर्ट है? पूरा सपोर्ट है सर। कि कुछ नहीं, बस सिर्फ देश के लिए मेडल लाओ, तुम्हारा एक काम है, बस देश के लिए मेडल लाओ। देश के मेडल के सर, उसके लिए प्रिपरेशन सर। उसके फर्दर अभी इसका भी और भी नेक्स्ट प्लानिंग चल रहा है। अभी शॉर्ट टाइम में 3 ओलंपियन बन गया। हाँ। अभी आने वाला ओलंपियन आने वाला 2020 में 5-6 ओलंपियन बनने का चांस है। उसमें 2020 में नहीं तो 2024 में मद्रास रेजिमेंट से एक मेडल भी लेने का चांस है। मेडल भी लेने का चांस है, वो मद्रास रेजिमेंट में लेने का चांस है। बिल्कुल साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर, एंड ऑल द बेस्ट साहब। थैंक यू सर। ओलंपिक का इंतजार रहेगा 100%। अब आपने बोल दिया तो हमारी उम्मीदें आपसे लग गई हैं। हाँ सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओलंपियन, यस सर। कहाँ पे दौड़े थे ओलंपिक्स में? रियो ओलंपिक्स सर। रियो ओलंपिक्स, ब्राज़ील। ब्राज़ील में। आपका क्या इवेंट है? मैं 20 किलोमीटर वॉकिंग है, रेस वॉकिंग है। अच्छा। और अभी 50 किलो भी कर रहा हूँ, दोनों इवेंट करने की कोशिश है अभी। अच्छा। लेकिन जो रियो में बस पार्टिसिपेट किया था वो 20 में किया था, 20 किलोमीटर में। हाँ। अच्छा, तो पहली बात तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, जी। हम एक ओलंपियन साथ हाथ मिला रहे हैं, ओलंपियन के साथ बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और हम प्रे करते हैं कि आप बिल्कुल करें। ये स्पोर्ट्स कब शुरू करा, बचपन से ही? ना, मैं तो 2018 में आर्मी ज्वाइन किया था।
और 2008 8 में 8 के बाद मैं नॉर्मल जीडी से भर्ती हुआ। हाँ वहाँ पे आके ये ट्रेनिंग पूरा आर्मी जो फौज के जो भी ट्रेनिंग होता है हाँ। वो ट्रेनिंग पूरा खत्म करके बेसिक ट्रेनिंग आपने खत्म कर हाँ जी दिया। हाँ खत्म करके उसके बाद मैं जो यहाँ पे जो 40 किलोमीटर रूट मार्च होता है हाँ। वो रूट मार्च में अच्छा कि मतलब फर्स्ट आया हाँ जो वेट वजन वगैरह लेके भागता है हाँ। उसमें मैं फर्स्ट आया। फिर यहाँ पे जो एक हमारा एक कर्नल साहब था कर्नल साहब को हिसाब करके वो साहब ने मेरा को रुकाया यहाँ पे आपका अच्छा मतलब क्वालिटी है आपको एक बार दौड़ के देखो क्रॉस कंट्री वगैरह जैसे चेक करके देखो। फिर मैंने यहाँ पे 2010 में शुरू किया था स्पोर्ट्स। हमारा कोच रामकुमार साहब है इसने मेरा को वॉकिंग सिखाया था। जैसे पहले मेरा गुरु साहब कोच था क्रॉस कंट्री में उसके बाद मेरा को एथलेटिक्स में डाला था वॉकिंग करेंगे करके। और अच्छा साहब ने मेरा को वॉकिंग अच्छे से सिखाया और बेसिक अच्छे से बेसिक बना के 2012 में मेरा कैंप में भेजा नेशनल कैंप जो कोचिंग कैंप होता है वहाँ पे अटेले में गया था। उसके बाद में अच्छा मतलब अच्छा डाइट सब कुछ सपोर्ट वगैरह अच्छा मिला वहाँ पे। और उसके बाद अच्छा जो है नेशनल मेडल है और इंटरनेशनल पार्टिसिपेट है अभी तक जो भी हर साल जो पार्टिसिपेट मैं करता हूँ नेशनल में मेडल आता हूँ और हर साल 2-3 इंटरनेशनल पार्टिसिपेट करता हूँ। अच्छा तो ये सब हुआ रूट मार्च से शुरू। हाँ जी फौज ने आपकी मेरा को फौज में हाँ जी मेरा सेंटर है मद्रास रेजिमेंट सेंटर है हाँ। इसने मेरा बहुत बड़ा मौका इसने दिया जो स्पोर्ट्स लाइफ मेरा अभी तक जो ओलमेंट तक मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ हाँ। वो सेंटर का जैसे पहुँचा हूँ जो मेरा इस सेंटर ने मौका दिया हाँ। और मेरा को अच्छा बनाया जो भी मेरा अभी ये जो लेवल है हाँ। और मेरा जो परफॉर्मेंस है जो नाम है सब कुछ जो मेरा सेंटर ने दिया। आप ओलंपियन हो हाँ जी लिखा है यहाँ पे ओलंपिक हाँ गेम्स जी। रियो 2016 ऊपर इंडिया भी लिखा है हाँ आपने। जी हाँ जी बड़ी बात है। तो शुरुआत एक रूट मार्च से शुरू हाँ हुई। जी रूट मार्च शुरू हुआ। फौज ने आपके पिट्ठू डाला हाँ जी एक राइफल पकड़ाई हाँ जी एक वाटर बॉटल पकड़ाई हाँ जी और बोला गो। या आप जितने भी रिक्रूट से उसमें से फर्स्ट है हाँ जी और शुरुआत एक ओलंपिक एथलीट की एक रूट मार्च से शुरू हुई। हाँ जी चलिए सो नाउ दीज गाइज हैव बीन लेफ्ट अलोन they train day in and day out their diet is taken care of course their financials are taken care of their dress and everything within whatever means the army has and the army has said go ahead and get glory for the nation। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम ये होप करेंगे या तो आप और इरफान दोनों मेडल लेकर आएंगे देश के Thank you, लिए। sir. ठीक है Thank you, थैंक यू sir. वेरी मच। Thank you, sir. When you say martial art what is the image that comes to your mind? Kung Fu, Karate, Taekwondo, but what if I tell you that in 300 BC that is 300 years before the birth of Christ Kalaripayat finds mention in the ancient Tamil Sangam literature. What if I were to tell you that in Kerala originated many thousands of years back an art, a violent martial arts form that is the envy of the world and the mother of all the martial arts. Viewers, watch this phenomenon. Viewers, you just saw a fantastic demonstration of the Kalaripayat, which is the ancient Kerala martial art. Now, you will see this on the TV screens, but I was there close to the fighters when they were fighting. And let me tell you that the blows that they were landing with their swords and with the urmis and with the spears and the knives were very real. I could see metal clashing with metal. And today it is my honor and privilege to bring to you the man who leads this ferocious pack. आपका पेट्रियट में स्वागत है। थैंक यू सर। आपका नाम क्या है? मेरा हवलदार उन्नी हवलदार उन्नी। सर। हवलदार उन्नी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं केरला का। केरला के है ना? सर। और केरला से ही ये कलरीपयट शुरू हुआ था? केरला में शुरू हुआ था कई हजार साल पहले। आप एक बात बताइए, आपने शुरुआत कब करी? आपने आर्मी में आके सीखा कि विलेज में सीखा आपने? मैं गांव में सीखा। गांव में सीखा आपने? इसमें गांव में सीखा हुआ आदमी है, इधर से भी सीखा हुआ आदमी है इधर। अच्छा, पर शुरुआत इसकी गांव में हुई? गांव में हुआ। तो एक बात बताइए, केरला में क्या काफी लोग सीखते हैं ये? केरला में हर गाँव में ये इसका कलरी सिखाएगा कोई ना कोई? सिखाते हैं, उसका कंपटीशन भी है। कंपटीशन भी होता है? तो आपने कभी बचपन में कभी पार्ट लिया कंपटीशन में? मैं स्टेट में 3-4 बार किया, पार्टिसिपेट किया। फिर आप आर्मी में आ गए? तो उन्हें आप एक बात बताइए, आपकी टीम में कितने लोग हैं? सर हमारी टीम है टोटल 16 है। 16 लोग हैं। लेकिन 2-3 आदमी चोट लगा इसलिए चोट लग गई? प्रैक्टिस में चोट लगा? क्योंकि आप लोग तो बिल्कुल जोर से मारते हो, बिल्कुल रियल मारते हो, कोई इसमें फेकिंग नहीं है, ये मैंने देखा है।
Really जो है ढाल के ऊपर जब तलवार पड़ती है तो प्रॉपर पड़ती है तलवार, प्रॉपर पड़ते हैं सर। प्रॉपर मारते हैं आप लोग ना? कोई पीछे ऐसे हाथ नहीं खींचता अपना, नहीं तो खींचता। मारता तो दम से मारता है। दम से मारता एक बात बताइए, आप लोग जैसे फॉरेन डेलीगेशंस आते हैं आर्म्ड फोर्सेस के, जापान के, ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के, उनके सामने जब आप परफॉर्म करते हैं या उनके सामने जब आप ये शो अपना दिखाते हैं कलारीपयट्टू का, तो वो लोग क्या बोलते हैं आपसे? वो यही बोलता है क्योंकि लाइव में पहली बार देख रहे। अच्छा। जो पिक्चर में इसमें बार देखता था, हाँ। लेकिन लाइव में पहली बार देख रहे, बोले पूरे हाथ मिलने के लिए आता था। हाँ, हाथ मिलाने के लिए आते हैं वो लोग कि चलिए। और एक और बात बताइए, क्या कभी उनको ये बताने का मौका मिला कि जिस मार्शल आर्ट्स को आप लोग इतना समझते हो, कराटे है, कुंग-फू है, एक्चुअली सब मार्शल आर्ट्स की जो माँ है, ओरिजिन है, वो कलारीपयट्टू यहीं से शुरू हुआ था? कभी उनको बताना, कभी मिलेंगे तो ज़रूर बताना उनको कि साहब जिस मार्शल आर्ट्स को आप प्रैक्टिस करते हो, कराटे है, कुंग-फू है, उन सब की माँ कलारीपयट्टू है। यहाँ से शुरू हुआ था, केरला से शुरू हुआ था, कई हज़ारों साल पहले यहाँ से मार्शल आर्ट्स शुरू हुई थी। आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगा, आपकी ताकत, आपका जोश, आपकी फुर्ती देख के, और पेट्रियट की टीम से आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you. Viewers, you know, such a pleasure to talk to him and interact with his team. You know, when they were fighting, they were not faking it. You could see the swords landing on the shield. You could see the urmi, this the flexible sword, you know, swishing through the air as if it could cut flesh and bone in a moment of an eye. And that is what these people do. They've been through the length and breadth of the country performing at various army functions, and they're always on the top of the wanted list. Everybody wants these people because they're so genuine, they're so real. And I leave you with this message today. All this that you see in Hollywood, fantastic, great, and nothing taken away from them, but you must realize, before there was karate, before there was kung fu, before there was taekwondo, the mother of all, thousands of years back, there was Kalaripayattu in Kerala.